تو ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تو تھا ایک نیوز کے بارے میں، یا جو ایک اینٹی امیگرینٹس تھے. اب یہ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ جیسے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ میں بہت ہی خوشی سے کہتا ہوں کہ میری انسپریشن علامہ اقبال ہے. انہوں نے کافی مجھے جو ہے نا چیزوں میں گائیڈ کیا ہے اور کافی چیزوں میں مجھے کلیئر بھی کیا ہے. سو کلیئرٹی آئی ہے مائنڈ میں. حالانکہ میں اس وقت فرانس میں تھا، بٹ اتنی دور ہو کے بھی مجھے انہوں نے ایسی چیزیں سکھائی ہیں، ایسی چیزیں مجھے ڈسکور کرنے کو ملی ہیں، جس کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہو گیا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ زندگی میں آپ کو کوئی مینٹور چاہیے ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مینٹور اسی دنیا میں ہو، اور وہ مینٹر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دے، جو اور چیزوں کے ساتھ جوڑ دے. تو اقبال از دا ریزن وائی میں واپس بھی پاکستان آیا ہوں، اور اٹس آلسو دا ریزن کہ میں اپنا کاروبار، اپنی چیزیں، معاملات اگر لے کے چل رہا ہوں، اور جو انرجی مجھے ملتی ہے وہ یہیں سے ملتی ہے. ویسے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کون ہے، لیکن آپ کے ورڈز میں ہو از اقبال؟ اقبال از ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی مایوسی میں ایک خواب دکھایا ہے. ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معاشرے میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کدھر ہم کس سچویشن میں ہیں، ہم کون ہیں. اقبال نے کہا واٹ ایور، مجھے جو نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اینڈ انہوں نے اتنی پازیٹیوٹی پھیلائی ہے اور اتنی چیزوں کو انہوں نے کویشچن کر کے ہمیں جگایا ہے کہ اس دور میں آپ سمجھے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. میں اس دور کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر اس ٹائم پہ میں ہوتا تو مجھے یہ باتیں سمجھ آتی. اب تو کیونکہ ٹائم گزر چکا تو اب سمجھ آ رہی ہیں. بٹ اقبال نے اس ٹائم پہ جب مسلمان سب سے نچلے درجے پہ تھے، جب مسلمانوں کے پاس کوئی فورس نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کوئی پوزیشن نہیں تھی معاشرے میں، اس ٹائم پہ اقبال نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا ملک بنائیں گے. اور انہوں نے صرف ایک بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہم بنائیں گے، ہم لازماً جو ہے نا بنائیں گے. تو اب بہت سے لوگوں نے اس پہ یقین کیا، بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا. تو ان کا ایک کوٹ بھی ہے کہ عشق و فریاد تھی تو ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے اس کی تاثیر دیکھ. ٹھیک ہے، تو اب بات وہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا. اس دور میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اس قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو اقبال نے تو سیریسلی ہم لوگ بھول گئے اقبال کو، بٹ اقبال از سم ون، اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں ابھی تو وہ آپ کو چینج کر دے گا. تو اقبال کا کردار پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے ریوائیو کیا ہے، انہوں نے ہماری ویلیوز کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہماری جو ہم ہیں، جو ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، ان کو جگایا ہے، واپس اس کو ریوائیو کیا ہے. اور پاکستان کا بن جانا اٹ واز امپاسبل. اگر اقبال نہ ڈریم کرتے تو آگے کوئی بھی نہ جو ہے نا اس پہ ایکشن لیتا، اور انگریز اور باقی لوگ جو تھے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے. اور اقبال کی وجہ سے یہ ایک نظریے پہ بھی بنا ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ دنیا میں جو ہے نا وہ سب سے پاورفل چیز جو ہے وہ نظریہ ہے. نظریے کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کو موو بھی کرا لیتے ہیں. آپ سوچیں خود کہ 40 سے 50 لاکھ لوگ جو ہے نا، اتنی بڑی جو ہے نا مائگریشن ہوئی ہے، تو وہ کیسے ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں نے مائگریٹ کیا ہے؟ کیا صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے؟ ہماری جنریشن، خاص طور پہ جو میری جنریشن ہے، جیسے میں ہوں، ہم لوگوں نے اقبال کو کیوں صرف ایز اے شاعر دیکھا؟ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی پچھلے جنریشن کی ہے، یہ غلطی پچھلوں کی ہے. اقبال کو جان کے سائٹ پہ کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ باقی جو شاعر ہیں، جیسے فیض احمد ہیں یا اور جو ہیں شاعر، ان کو آگے لے کر آئے ہیں تاکہ یوتھ کو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ اقبال ہے کون. انہوں نے جان کے آپ کو جو ہے نا ایک دو کوٹس میں بند کر کے رکھ دیا، بخودی کو کرو بلند اور اس طرح کر کے. باقی جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ آپ لوگ نہ اس چیز کو سمجھ سکے، بیکاز اگر اقبال کو آپ سمجھ گئے تو آپ کے اندر
लीडरशिप आ जाएगी, आप अच्छे मैनेजर नहीं बनेंगे। क्या फ़र्क है एक अच्छा मैनेजर और एक अच्छा लीडर? एक अच्छा मैनेजर जो है ना वो रूल को फॉलो करता है, और एक अच्छा लीडर जो है वो रूल क्रिएट करता है। हमें बेसिकली मैनेजर के तौर पे जो है ना ट्रेन किया जाता है। इकबाल जो है ना वो आपको चेंज करते हैं। इकबाल आपके अंदर वो आग स्टार्ट करते हैं, या जो भी फायर है आपका वो ऑन करते हैं, जिसकी वजह से आप फिर दुनिया में तब्दीली लानी शुरू कर देते हैं। तो इकबाल को पढ़ना बहुत लाजमी है। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब पिछली जनरेशन ने जो कर दिया वो हो गया, बट नाउ यू हैव टू स्टडी। मैंने फ्रांस में बैठ के मैंने खुद जो है ना पढ़ना शुरू किया। एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं हूँ कौन हूँ। वो जैसे इकबाल अक्सर कहते हैं कि जो मगरिब का तूफ़ान है वही मुसलमान आपको बना देगा। कि वो जो मगरिब का तूफ़ान है, जो उनका निज़ाम है, जो सिस्टम है, वही आपको आपके अंदर वो पैदा करेगा आग, ताकि आप समझ सके कि आप कौन हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को आप सोचें, खुद भी रिसर्च करें कि इकबाल कौन है, कैसे हो सकता है एक शख्स जो पहले ही फौत हो गया पाकिस्तान के बनने से पहले, कैसे हो सकता है कि उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो आपके बकौल जैसे कि इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं है, तो इन्होंने ही आपको भी हेल्प की कि आप इंस्पायर किया और मोटिवेट किया। बिल्कुल मोइज़, हमने उन्हें एक लेबल लगा दिया कि ये एक शायर हैं, दैट्स इट। क्योंकि जब आप लेबल लगा देते हैं तो फिर इट्स ईजी टू पुट समवन इन सम बॉक्सेस कि बस ये जो है ना शख्स ये बस शायरी करता है। प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने इकोनॉमी पे बात की है, उन्होंने फ़िलासफ़ी पे बात की है, विजनर खुद थे, थिंकर थे, पॉलिटिक्स पे उन्होंने बात की है, जमहूरियत को उन्होंने आपको डिफ़ाइन करके दिया है। अब जमहूरियत उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि जमहूरियत ये वो निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, और ये एक जुल्म का निज़ाम है। अब उस दौर में जमहूरियत अभी आ रही थी, अभी आई भी नहीं थी, और उस दौर में वो उसको डिफ़ाइन कर रहे थे कि गाइज़ बी केयरफुल, एक नया निज़ाम आ रहा है, बादशाह को हटा के जो है ना ये जमहूरियत ला रहे हैं, बट बी केयरफुल, ये इसमें जो है ना लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इन्होंने तो फिर इसका मतलब है कि जो है ना फिर ये शायर तो नहीं रहे, फिर इन्होंने आगे बढ़ के पॉलिटिक्स और इस निज़ाम के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने बात की है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने इनको बंद कर दिए एक बॉक्स में। तो आपकी ज़िंदगी में इकबाल का एक अहम रोल है। आपकी यानी माइग्रेशन के पीछे भी जो इंस्पिरेशन है वो इकबाल से ही आई। बिल्कुल मोइज़, माइग्रेशन जो है वो इकबाल ने काफ़ी मुझे इस पे गाइड किया है, और एक उनकी लाइन थी बड़ी खूबसूरत जिसमें वो कहते थे कि जो मग़रबी निज़ाम है वो अपने खंजर से ख़ुदकुशी खुद करेगा। तो मैं जब इस लाइन को पढ़ता था तो मुझे हैरत होती थी, मैं ये सोचता था कि अगर इस निज़ाम ने कोलैप्स कर जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि इकबाल ने जितनी बातें की हैं वो हवा में तीर नहीं है, वो प्रॉपर एक गाइडेंस और एक मैसेज के तौर पे जो है ना उसको आप ले सकते हैं। तो जब मैं इस लाइन को पढ़ता था तो मैं यही सोचता था कि किस तरह जो है मैं पाकिस्तान शिफ्ट हूँ और कैसे मैं जल्द से जल्द आ सकूँ। तो ये ख़्याल तो बहुत देर से चल रहा था कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मैं इधर आके कुछ करना चाहता हूँ। तो लाइक माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है और जिसमें हेल्प आउट मुझे काफ़ी मिली है वो इकबाल से मिली है। इकबाल को एक शायर के तौर पे नहीं, एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पे सुने, तो इसका मतलब हम लोग अभी भी इस दौर के अंदर एक्टिव हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मोइज़, बहुत ज़रूरी है कि आप इकबाल से कनेक्ट हों, इकबाल के साथ जो है ना अपना ताल्लुक़ जोड़ें और इकबाल को समझें। बिकॉज़ इकबाल जो है ना वो आपको फ्री कर देगा, वो आपको हर खौफ से दूर कर देगा, और वो बेसिकली मज़े की बात है उनकी जितनी भी बात है वो यूथ के लिए है। वो बात ही नहीं कर रहे बुज़ुर्गों से, वो बात ही नहीं कर रहे एल्डर से, वो बात कर रहे हैं यूथ से, और उन्हें पूरा यकीन है यूथ से। तो यूथ को चाहिए कि वो इकबाल को पढ़ें और इकबाल पे रिसर्च करें, इकबाल पे स्टडी करें, उस पे डीप जो है ना उसके अंदर जाके उसको समझें कि इकबाल कहना क्या चाह रहे थे। इकबाल ने जब इस खित्ते की बात की है कि वापस जो है ना खित्ता उरूज पे जाएगा, तो ये कोई आम सी बात नहीं थी। पाकिस्तान का बन जाना इम्पॉसिबल था, पाकिस्तान का कायम रहना इम्पॉसिबल था, आज तक कायम है।
ये सारी उन चीज़ों की वजह से, बिकॉज़ इन लोगों को, ये लोग विज़नर थे, इन लोगों को वो चीज़ें नज़र आती थी जो हमें नज़र नहीं आती। तो अक्सर इकबाल वो एक मिसाल देते थे कि आई एम लाइक, मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और मुझे उस तरफ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो लोग पहाड़ के नीचे उन्हें नज़र नहीं आ रही। तो इस वजह से यूथ को लाज़मी है कि आप पढ़ें, और ऑब्वियसली जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, आप खुद ब खुद अपने काम में आपकी तेज़ी आ जाएगी, समझदार हो जाएंगे और बेहतरी आएगी। इकबाल को जानने और उसे सीखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है उनको पढ़ना। लेकिन हम लोगों को क्यों हमारी आदतों में से रीडिंग जो है वो माइनस होती जा रही है दिन ब दिन? एक तो उसके मुकाबले पे स्क्रीन्स आ गई हैं, तो ज़्यादा टाइम आपका स्क्रीन पे गुजर जाता है। ऑब्वियसली दिन में आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है, वो जब एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर आपका रीडिंग का भी दिल नहीं करता। तो रीडिंग की जो आदत है वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। आप किताबें खोल के पढ़ें। मैं खुद जो है ना बहुत कम पढ़ता हूँ, बट ऑब्वियसली ये कोशिश मेरी रहती है कि अगर मैं कुछ इकबाल के बारे में पढ़ सकूँ या मैं कुछ और नॉलेज हासिल करने के लिए कुछ पढ़ सकूँ, क्योंकि 90% आपका जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो ऑब्वियसली आप फिर ऑनलाइन चीज़ें पढ़ लेते हैं। बट पढ़ने वाली आदत आप रोकें ना, चाहे वो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप किताब पे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। आप एक आदत बनाएं कि रोज़ मैंने कुछ पढ़ना है ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और इकबाल का एक ना एक उनके काफ़ी अच्छे ब्लॉग हैं, कुछ लोगों ने बनाए हैं, जिसकी वजह से मैंने भी डिस्कवर किया था फ्रांस पे। तो वो ब्लॉग डिस्कवर करें जाके, और उनके अंदर उन्होंने ट्रांसलेशन भी लिखी है इंग्लिश में उस कोट की, तो उसको जाके रिसर्च करें, उसको फिर एलाबरेट करें जीपीटी के अंदर डाल के, उससे कहें कि एक्सप्लेन मी व्हाट ही वांट टू से, देन कोशिश करें समझने की उस बात को। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो इकबाल ने जैसे इस कौम को जगाया, तो इस वक्त फिर ये वो वक्त है कि इस कौम को जानने की ज़रूरत है। तो अगर अभी वो होते तो वो हमसे और इस यूथ से क्या चाहते? इकबाल अगर इस वक्त होते तो उन्होंने यही आपको बताना था और यही कहना था कि आप लोग आज़ाद हों। आज़ादी जो है वो निज़ाम से हट के आती है। जिस निज़ाम में अभी आप पल रहे हैं, जिस निज़ाम में आप हैं, ये आपका निज़ाम नहीं है। ये आपके वैल्यूज़ से बहुत दूर है और ये आपकी चीज़ों से बहुत दूर है। सो वो यही आपको अभी जो आपको मैसेज देते पाकिस्तान के होते हुए, कि आप पाकिस्तान को अपने उरूज पे लेके जाना है। तो उरूज पे लेकर जाने के लिए आपने वो कौम रेडी करनी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो सके। तो मेन पॉइंट है कि अच्छा, इकबाल की एक और भी ख़ासियत है। इकबाल इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कुरान एंड सुन्नत। इट्स द ईज़ीएस्ट वे। मैं बहुत दूर था इन चीज़ों से। बचपन में कुरान पाक और अम्मी अबू के साथ ये चीज़ें मैंने स्टडी कर ली थी, बट इकबाल को जब मैंने जाना तो मेरी वैल्यूज़ और क्लैरिटी ज़्यादा आई है। उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ईज़िली सिंपल वर्ड में जो है ना एक्सप्लेन किया है। तो इकबाल जो है ये एक अच्छा जो है ना जंप स्टार्ट है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का। इस सारी बातों से हमें ये समझ आता है कि हमें इकबाल को ज़रूर सुनना चाहिए और ऐसे जितने भी स्पीकर्स थे उस वक्त के उन लोगों को सीखना चाहिए और सुनना चाहिए, ना कि उनको भूल जाए। यही तरीका है हमें इस दौर के हिसाब से अपग्रेड होने का और कुरान और सुन्ना से और स्पिरिचुअली जुड़े रहने। सुनने के साथ साथ मोइज़ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप बात को सुने और प्रैक्टिकल हों। अगर इकबाल माइग्रेशन इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, हिजरत के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू मूव। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने आज़ाद होकर अपने काम करें, तो आप आज़ाद होकर अपना काम करें। अगर वो कह रहे हैं एक फ्री माशरा बनाएं, तो आप फ्री माशरा बनाएं। उन्होंने कुछ ना होते हुए भी उन्होंने हमें पाकिस्तान का ड्रीम दे दिया। हमारे पास तो सब कुछ है। जी, तो आज की ये हमारी कन्वर्सेशन जो एक बहुत अच्छा मैसेज है यूथ के लिए, हम सब के लिए, कि हमें अपनी स्पिरिचुअल रूट से कनेक्ट हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल मोइज़।